أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. آیت نمبر 110 سورۃ البقرہ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. محترم رفقا، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہیں. میں کچھ باتیں انشاءاللہ زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے، اور پھر زکوٰۃ کیوں ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے اجتماعی اصول کیا ہیں، اجتماعی طور پر زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلفاء راشدین کے دور تک اسے کیا اہمیت دی گئی، اور پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت جو زکوٰۃ کے مصارف ہے اس پر انشاءاللہ مختصراً کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نماز کو قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں جس میں زکوٰۃ اور نماز کے قیام کی تاکید کی گئی ہے. فرضیت اس کی اس سے ظاہر ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ کے تعلق سے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بے شمار آیتیں، آپ کے سینکڑوں آیتیں ایسی آئیں گی اپنے تلاوت کے دوران جو زکوٰۃ کے تعلق سے فرضیت، اس کی کیوں اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے. یہ ایک طبقے کے اندر جو غربت رہتی ہے اسے خوشحال بنانے کی خاطر یہ چیز اسے فرض کیا قرار دیا گیا ہے. اور اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس نے غربا، مجبور، تنگ دست لوگوں کی اہمیت، زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کی جو طاقت ہے انہیں وہ اجاگر فرما کر اس کے ذریعے سے غربا اور مجبور اور مساکین کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت، اس پر سب کا اجماع بھی ہے، احادیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور صالح علماء اکرام بھی یوم اول سے ہی جب سے زکوٰۃ کی فرضیت کا دور ہوا اسی وقت سے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور سب کا اجماع بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. اور زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے بیسکلی اس آیت کو لیا جاتا ہے، اور اس سے بھی بے شمار جو آیتیں ہیں اسے بھی اس کے لیے لایا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھلائی کے کام اپنے لیے کرو گے وہ اللہ کے پاس ضرور اس کا اجر پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جو اعمال ہیں ان اعمال پر نظر رکھتا ہے اور ان اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہاں پر تجدوہ عند اللہ، زکوٰۃ کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس انسان کو ملتا ہے، اور اس زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی اسے نہیں کرنی چاہیے. یہ آیت، اس آیت کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے جو حدیث بیان کی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کو زکوٰۃ پر لازم قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ لازماً انسان کو جہاں اس کے جس کے لیے زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ بھی انشاءاللہ نیچے
आपके सामने बातें आएंगी। बुखारी शरीफ की जो हदीस है उसमें हज के लिए ही ये कहा गया कि इस्तिताअत हो। और ज़कात का जहाँ तक मामला है, साहिब निसाब अगर है, जिसको कि हदीस में बयान किया गया, उसके मुताबिक अगर साहिब निसाब है तो लाजिमन उसे ज़कात अदा करनी होगी। ज़कात के मकासिद और उसके जो फ़वाइद हैं उसके ताल्लुक से दो चार बातें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात जो है, मुआशरती बराबरी पैदा करने का एक सबसे बड़ा जरिया ज़कात है। मालदार गरीब में कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए और सब एक साथ हों। जिस तरह की नमाज के अंदर मसावत के साथ जो है मस्जिद में जाते ही खड़ते ही और मालदार से लेकर गरीब तक एक साथ खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, तो उसी तरीके का सिचुएशन एक मुआशरे के अंदर, इस्लामी मुआशरे के अंदर होना चाहिए। इसलिए मुआशरती बराबरी के लिए, ज़कात अमीर और गरीब के दरमियान मुआशी खलीज दूर करने के लिए और मालदारों के साथ, अहले सरवत के साथ उन लोगों का ताल्लुक जोड़ने के लिए जो है ये ज़कात रखा गया है। और दूसरी चीज़ जो है दिलों की पाकीज़गी। इसके अंदर आदमी जब ज़कात अदा करता है तो उसके दिल को राहत मिल जाती है, खुश हो जाता है कि मैंने अपने ज़रूरतमंद परेशान हाल आदमी की जो है मैंने परेशानी को दूर की। उसे तमानियत क़ल्ब उसको हासिल होता है, दिलों की पाकीज़गी होती है। और इसकी वजह से चोरी, डाका, इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। जहां ज़कात अदा नहीं होती है वहीं पर चोरी और डाके का दौर दौरा चलता है। जिसे माल ज़रूरत है वो गलत रास्ते से जाकर माल दूसरों के पास से हासिल कर लेता है। अगर ज़कात उसे सही तरीके से अदा कर दी जाए और उसे साहिब निसाब तक बनाने की कोशिश की जाए और वो खुद साहिब निसाब बन जाए तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि एक दौर में आया था कि ज़कात लेकर घूम रहे हैं लोग, लेकिन ज़कात लेने के लिए कोई नहीं रास्ते में। इस तरह का एक सिचुएशन है। अगर ये मामला आ गया तो चोरी, डकैती या और इस तरह के जो बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाती हैं और ईसार और कुर्बानी का जज्बा इसके अंदर पैदा होता है। हर ये ख्वाहिश करता है कि वो ज़कात का माल मैं निकालूं और किसी ज़रूरतमंद को, परेशान आदमी को मैं अदा करूं। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो ज़कात के लिए लाजिम है, ये ज़कात की वजह से मुआशरे के अंदर पैदा होता है, वो क्या है? मुआशी इस्तेहकाम। मुआशी इस्तेहकाम गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंद और इस तरह के जो लोग हैं उनके उसकी गुर्बत को, मस्कनत को ख़त्म करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। और चौथी चीज़ जो है रूहानी तरक्की है। इसके अंदर रूहानी तरक्की, रूहानी बालिदगी मिलती है। आदमी बहुत ही मुतमईन रहता है और उसमें इबादतों का जो जज्बा, आमतौर पर नमाज में जो उसे तमानियत मिलती है, उसी तरह की तमानियत ज़कात अदा करने में भी उसे हासिल हो जाती है और ये आखिरत की कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया भी है। ज़कात के शराइत में जैसे कि मालूम है कि हम मुसलमान हो, आकिल बालिग हो, साहिब निसाब हो और फिर उस माल पर जो है एक साल का गुजरना लाजिम है। हमारे पास एक तसव्वुर बैठ गया है रमज़ान में ज़कात निकालने का। रमज़ान और ज़कात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ ज़कात का जो है हौलाने हौल है, एक साल गुजरने पर ज़कात अदा करने का तसव्वुर है। मेरे पास अगर ज़कात देने का माल 2 माह पहले मेरा ज़कात का मामला बनता है, यानी मिसाल के तौर पर जनवरी में मैं ये साल का गुज़िश्ता जनवरी यानी 24 जनवरी को मेरे पास 5 तोले चांदी के बराबर का माल था या 5 तोले चांदी था। मिसाल के तौर पर ये 5 तोला नहीं, सॉरी 555 ग्राम। मिसाल के तौर पर आज के हिसाब तो जो है 50,000 लगभग एक अमाउंट है उसका। तो वो पैसा 52.5 तोला 525 ग्राम को जो है 110 रुपये के हिसाब से, आज के हिसाब से है। 10 रुपये का हिसाब उस जमाने का 100 रुपये का हिसाब अगर रख लेते एक साल पहले का, तो वो अमाउंट मेरे पास है और 25 जनवरी में पहले तारीख को वो अमाउंट पर मेरा वक्त अगर गुजर गया है तो लाजिमन मुझे चाहिए कि उसमें मैं ज़कात अदा कर दूं। मुझे रमज़ान का इंतज़ार उसमें नहीं करना चाहिए। और ज़कात निकालने के बाज़ लोग ये भी करते हैं कि उसमें की जो ज़कात है वो निकाल कर अपने पास रख लेते हैं और अक्सर रमज़ान का इंतज़ार करते हैं और रमज़ान में देना चाहते हैं।
लेकिन ज़कात का तसव्वुर जो है रमज़ान में, कुरान मजीद में हो या हदीस में हो, कहीं भी रमज़ान में ज़कात निकाला करो इस तरह की बात कहीं नहीं बताई गई है। लेकिन पूरे मुआशरे के अंदर जो है अजर सवाब कमाने के खातिर रमज़ान में जो सवाब एक फ़र्ज अदा किया जाता है, उसका अजर जो मिलता है, उसका जज्बा अपने दिल में रखते हुए लोग जो हैं बहुत बड़ी गलती भी कर बैठते हैं। तो ये अब मिसाल के तौर पर रमज़ान मुझे जो है ज़कात रमज़ान के बाद फ़र्ज होती है, लेकिन रमज़ान का महीना आ गया, तो ऐसी सूरत में मैं रमज़ान का लिहाज रखते हुए अगर खर्च करता हूँ तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। उसका कैलकुलेशन रमज़ान के बाद का जो है उसका हिसाब रखते हुए मुझे करना होगा। लेकिन ये पहले जो तसव्वुर रमज़ान के साथ ज़कात का जो है वो हमारे दिलों से निकालना चाहिए, हमारे ज़हनों से निकालना चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़कात का जब वक्त आ गया तो उसी के मुताबिक हमें ज़कात निकालना होगा। और फिर अगर बाद में निकलता है ज़कात का वक्त और रमज़ान पहले आ जाता है तो कुर्बानी देते हुए हम आगे बढ़कर रमज़ान में वहां तक का हिसाब रखकर हमें निकालना होगा। और इसी तरह ज़कात की जो शरह है 2.5%, 2.5% है। और उसके ऊपर ज़कात की किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज है, वो नकदी सोना है, चांदी है, करेंसी जो हमारे पास, वो चांदी की जो रकम 52.5 तोला मैंने जैसे कहा है, तो उसके मुताबिक करेंसी हमारे पास मौजूद है या बैंक में पड़ी हुई है, जिसको हम खर्च नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ऐसी चीज़ों पर जो है लाजिमन निकालना होगा। और ज़रूरी पैदावार है, खेती बाड़ी से जो माल निकलता है वो, फिर मवेशी जानवरों में है, और फिर दफन शुदा खजानात और मादनियात जो भी चीज़ हम लोग ये रखे हैं वो, और फिर हमारे इसमें दफन शुदा तिजारती माल में जो है ज़कात वाजिब लाजिम हो जाती है, उस पर भी 1 साल का, फिर उस पर जो उसकी तिजारत का जो सामान है उसकी बुनियाद पर होगा। और फिर उसमें किराए के लिए मकानात हम रखते हैं, और एक से ज्यादा घर है जो फरोख्त करने के लिए रखते हैं, उन सारी चीज़ों पर जो है ज़कात लाजिम हो जाती है। तो बहरहाल ये ज़कात के उन्वान पर जो है कुछ बातें मैंने आपके सामने इसके ताल्लुक से, फर्जियत के ताल्लुक से, और फिर उसके इसके ताल्लुक से मैंने लिखी थी। अब आइए मसारिफ जो हैं ज़कात के, उस पर हम लोग एक नज़र दौड़ाते हुए आगे बढ़े। तो सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 60 में अर्ज किया कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील फ़रीज़तम मिन अल्लाह। यानी सदक़ात का जहाँ तक मामला है, ये सदक़ात यकीनन फ़ुक़रा के लिए, मसाकीन के लिए, और उस पर काम करने वालों के लिए, उनके दिलों को मालूफ करने के लिए, और कैदियों को आज़ाद कराने के लिए, वलगारिमीना कर्जदारों के हुकूक, कर्जदारों के कर्ज को हल्का करने के लिए, और अल्लाह के रास्ते में वफ़ी सबीलिल्लाहि व बिनी सबील, और मुसाफिर के लिए। ये 8 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसारिफ बयान किए हैं। तो ये 8 मसारिफ में हम लोगों को देखना चाहिए कि हम जो ज़कात निकालते हैं तो उसमें से 8 मसारिफ में छोड़कर कहीं किसी दूसरे मसारिफ में हमारे ज़कात की रकम निकल तो नहीं जा रही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मदारिस के लिए जो ज़कात का मामला, सफ़ीर हजरात जो हमारे पास आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, और उसमें हम बेशतर ज़कात की रकम ही देते हैं, और वो मांगते भी ज़कात ही की रकम आमतौर पर। तो ज़कात की रकम जो है मदारिस के लिए तो नहीं है, लेकिन वो मदारिस वाले क्या करते हैं, वो ज़कात की रकम हमारे पास लेकर जाते हैं, और किसी एक ज़कात का जो हकदार होता है, मिसाल के तौर पर 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में एक बच्चा अगर वो ज़कात का हकदार है, तो उसे जो है वो पूरी ज़कात की जो रकम है उसके नाम, उससे बोल देते हैं कि ये ज़कात की रकम जो है तुम्हारे लिए हम दे देते हैं। फिर उसके बाद उसके पास से वो रकम लेकर मदरसे के लिए खर्च करते हैं। तो ये मामला चलता है। तो ये मिल्कियत, बच्चे को उसकी मिल्कियत दे देते हैं, फिर उसके बाद उसके पास से लेकर तोहफे के तौर पर सबको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट का मामला है। डायरेक्ट का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जो बताए वो पूरे 8 भी डायरेक्ट का मामला है। तो इनडायरेक्ट बात का मामला है, उसमें भी हमारी रकम खर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है पूरी रकम तकरीबन हमारी बड़े बड़े लोगों के पास जाकर जो भी ज़कात उनके पास है वो बेशतर हिस्सा जो है मदारिस के लिए ही चला जाता है।
تو یہ بہرحال یہ 8 جو اس میں بتائے گئے ہیں، ایک تو ہے فقراء، فقیر جو اپنی پریشانی ظاہر کرتا ہے، مسکین پریشان رہتا ہے لیکن اس کی پریشانی کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اور عاملین علیہا زکوٰۃ کا مال کلیکشن کرنے والے اور اس کے پیچھے جو محنت کرنے والے ہیں وہ، اور معلفت قلوبہم دلوں کو تالیف کے پیدا کرنے کے لیے، یعنی اسلام قبول کرنے، اس میں 2 باتیں آتی ہیں، جو مسلمان ہو گیا ہے اسے بھی تالیف قلب کے لیے، اور جو غیر مسلم ہے لیکن وہ بڑا ظالم ہے اور اس کے ظلم کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ اسے مال دے کر اسے اسلام کے تئیں اسے خاموشی اختیار کروانے کے لیے، اس کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے اگر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بھی یہاں پر والمؤلفۃ قلوبہم میں مفسرین نے یہ بات کہی ہے۔ اور پھر رقاب، قیدیوں کو آزاد کرانے کے خاطر، اب جو قیدی حضرات ایسے ہی بغیر کسی اس کے شک کی بنیاد پر ایسے ہی جھوٹے طریقے سے قیدیوں کو لے جا کر رکھ لیتے ہیں اور سالہ سال ان کا وہاں پر وقت گزر جاتا ہے اور وہی بیل لینا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے وکیل کے کام کے لیے اور ان کو بیل لے جانے کے لیے اس طرح کی اگر رقم زکوٰۃ کی خرچ کی جاتی ہے تو یہ درست ہے، اور یہی اسی راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں سے مراد مجاہدے کا معاملہ جہاں تک آتا ہے اس میں ہے، بیت المال کے لیے ہے، اسلامی بیت المال، جو بھی بیت المال اسلام کے مسلمانوں کی جانب سے متعین کیا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہاں پر رکھی جاتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، اگرچہ کہ وہ اپنے پاس بہت اچھا رہے گا مسافر، لیکن وہ مسافر جب سفر پر نکلتا ہے اس کے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے اور وہ کچھ اپنی پریشانی کو وہ مانگنے لگتا ہے، اپنی پریشانی کو پیش کرنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے زکوٰۃ کی رقم میں خرچ کی جانی چاہیے۔ یہ جو ہے یہ 8 جو اللہ رب العزت نے مصارف بیان کیے ہیں، یہ 8 بھی جو ہے فریضۃ من اللہ کی طرف سے فرض کردہ مصارف ہیں، تو ان مصارف کو چھوڑ کر ہم دوسرے مصارف کو اختیار ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ مصارف ہوئے، ایک تو بات ہمارے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے آئی، پھر اس کے بعد مصارف کے تعلق سے آئی۔ اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنا چاہوں گا وہ خلفائے راشدین کے دور میں اجتماعی نظام کا جو زکوٰۃ کا جو نظام تھا اس کو جو روب عمل لایا گیا اور اس کے جو ثمرات تھے اس کے تعلق سے، تو خلفائے راشدین نے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو معاشرتی ذمہ داری سمجھ کر اپنے دور اقتدار میں برابر انہوں نے اس کی اہمیت دی اور اسے بنیادی ذمہ داری کی حیثیت سے لے کر اس کے پیچھے پوری محنت انہوں نے کی اور اس نظام کو قائم کیا، اور باقاعدہ یہ 5 مصارف جو ہیں، ان 8 مصارف جو ہیں، ان 8 مصارف کی بنیاد پر زکوٰۃ کی وصولی ہوتی تھی، اور وصولی کے بعد جو ہے یہ 8 مصارف میں وہ زکوٰۃ کو خرچ بھی کیا جاتا تھا۔ قانون سازی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی وصولی کے تعلق سے قانون بنائے، جو سخت قانون بنائے، کیونکہ منکرین زکوٰۃ بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ جہاد کا بھی اعلان کیا گیا، تو ویسے لوگوں کو بھی انہیں نمٹا گیا، اور زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے جو عہدے دار تھے ان کو بھی کس طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ وصول کس طرح کیا جائے، تو اسے بھی یہ کیا گیا۔ اور پھر مستحقین کی شناخت کی جاتی تھی، باقاعدہ ان کے مدد کرنے کے لیے مستحقین کی شناخت کی جاتی، اور ٹیکس کی شکل میں بھی زکوٰۃ جو ہے تھوڑا سا لیا جاتا تھا، جسے مستحکم کرنے کے لیے اور فلاحی کاموں کے لیے جو ہے بہبود کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ محروم طبقات کی بطور خاص اس میں کیا ہوتی تھی، مدد کی جاتی تھی۔ محروم طبقات سے مراد جو وہ لوگ جنہیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں، جن کی مجبوریوں کو دیکھ کر، یعنی مسکینوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اپنی ضرورت کو وہ ضرورت کو مانگتے نہیں ہیں اور ضرورت میں ایسے ہی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار لیتے،
यहाँ पर मिस्किन से मुराद बाद लोगों ने ये कहा कि आमदनी इंसान की बहुत कम है, लेकिन उसके अखराजात जो हैं वो बुनियादी आमदनी, बुनियादी ज़रूरतें भी जो हैं उसके आमदनी के से बढ़कर हैं। तो ऐसी सूरत में जो है ऐसे लोगों को ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी उस तरह के लोगों को तलाश करना, यानी महरूम तबक़ात से मुराद ऐसे लोग जो अपने अंदर मजबूरी रखते हैं लेकिन उस मजबूरी को जाहिर नहीं करते हैं। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में इज्तिहाद किया जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, फिर उसके बाद वो इज्तिहाद करके उनके मसाइल को, ज़कात के नए नए मसाइल पर जो है उसे इस्तेमाल किया जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीने में खिलाफत आपने संभाली, ज़कात के मजबूत निज़ाम को नाफिज किया, एकदम मजबूत निज़ाम को नाफिज किया, और फिर क़वानीन को भी वाज़े कर दिया और ज़कात पर जोर देकर उनके पास से वसूल किया गया जो ज़कात देने से इनकार भी कर रहे थे। आपने ज़कात न देने वालों के खिलाफ सख्ती से जो इक़दाम किए, उसका असर यह हुआ कि लोग जो है उसमें गरीब और मिस्कीन जो लोग हैं उनकी मदद हो पाई। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो फर्जियत से इनकार भी किया। तो बहरहाल ये बातें थीं जो इसके ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी। बहरहाल ये बहुत ही वसी व अरीज़ मौजू है, इस पर हमें इज्तिमाई निज़ाम ज़कात का जो खुलफ़ाए राशिदीन ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो तसव्वुर पेश किया है, वो तसव्वुर हमें आज के इस माहौल में भी लाना चाहिए। इनफरादी ज़कात जितनी हमारी अदा होगी उतना ही हमारे लिए गुर्बत आम होने का एक ज़रिया है। इनफरादी तौर पर ज़कात अगर हम अपनी पहचान के लोगों में अगर हम ज़कात अदा कर देंगे तो मामला ये होगा कि वो गरीब का गरीब ही रहेगा, क्योंकि ज़कात सिर्फ मेरी जानिब से जाएगी। अगर इस्लामी बैतुल माल के अंदर जाता है वो, यानी एक सेंटर में जाता है ज़कात, तो वहाँ पर इज्तिमाई निज़ाम अगर ज़कात का होगा तो मेरे पास से जो ज़कात रकम जाती है उससे बढ़कर दूसरों की रकम भी उसके पास जाएगी और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और फिर वो आने वाले दौर में वो खुद एक ज़कात देने के काबिल बन जाएगा। तो इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम सारे मुआशरे के लिए सबसे बेहतरीन निज़ाम है। आज वही निज़ाम हमारे सामने मौजूद नहीं है। इज्तिमाई निज़ाम, ज़कात का निज़ाम बिल्कुल मौजूद नहीं है। इस निज़ाम को कायम करने के लिए इस्लामी हुकूमत का ही होना ज़रूरी नहीं है। इसे अपने मोहल्ले के एतबार से, मिसाल के तौर पर एक मुतवल्ली है तो वहाँ के मस्जिद के मुतवल्ली और उसके जो अराकीन हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ इस निज़ाम को अगर नाफिज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। वो अपने मोहल्ले के अंदर जितनी ज़कात है वो सबके पास से वसूल किए और वसूल करने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ रखते हैं, और ये 8 मसारिफ की बुनियाद पर वो खर्च करते हैं। और उसमें वाकई वो 8 मसारिफ के अंदर आने वाले जो मजबूर तंगदस्त अपने रिश्तेदार हैं, मिसाल के तौर पर अब मैं हूँ और मैं एक मोहल्ले में रहने वाला हूँ और मेरे पास से 1 लाख रुपए ज़कात निकलती है, और वो मैं 1 लाख रुपए मेरे घर के मजबूर तंगदस्त मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको मैं देना चाहता हूँ, तो मैं उनके नाम उनके पास देकर उनकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए उसमें इस तरह अगर आएंगे तो सारे मुआशरे के पूरे मोहल्ले की ज़कात उनके पास जमा होगी, करोड़ों के मालियत की ज़कात जमा होगी, और उसमें से वो निकाल कर उन परेशान हाल लोगों की जो है ज़रूरत को वो पूरी कर पाएंगे। तो फिर मामला ये होगा कि पूरा मोहल्ला हमारा ज़कात देने वाला भी इंशाल्लाह ज़रूर बन सकता है। जमात इस्लामी हिंद इज्तिमाई निज़ाम ज़कात की जो फिक्र लेकर उठी है, रोज़े अव्वल से ही, उसके क़याम के शुरू से ही, उसकी सबसे बड़ी अहमियत यही है कि उसकी वजह से उनके पास से जो ज़कात वसूल की जाती है, हमारे पास एक तरीक़ेकार भी है जमात इस्लामी के अंदर कि ज़कात की रकम 30% हमारी जो ज़कात पूरी मुकम्मल ज़कात वहाँ पर दे देनी है, और देने के बाद जो है उसमें हमें जिनको देना है उनके नाम भी अगर उनके पास पहुँचा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पूरी अमानतदारी के साथ हमारी ज़कात की रकम से निकाल कर वो उनकी ज़कात को ज़रूर देते हैं। और ये जमात का निज़ाम है कि हमारा इज्तिमाई निज़ाम कि पूरी तरह ज़कात की रकम लाकर वहाँ पर दे दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात इस्लामी के हद तक ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जो भी साहिब निसाब हैं वो सारी ज़कात निकाल कर वहाँ पर उसे जो परसेंटेज मुकर्रर किया गया है वो परसेंटेज के हिसाब से लाकर वहाँ पर पहुँचाते हैं। अगर यही पूरे मुआशरे के अंदर आ जाए
تو انشاءاللہ اس کے ضرور فائدے ہوں گے، اور اجتماعی زکوٰۃ کا نظام جیسے ہی آگا تو خوشحالی آ جائے گی، فقیری، غربت اور تنگ دستی یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ڈکیتی، چوری یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ایمانداری کا دور دورہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت کو سمجھنے، اور پھر اس کے جو مصارف ہیں ان مصارف کو سمجھتے ہوئے ان مصارف میں خرچ کرنے کی، اور اجتماعی طور پر نظام زکوٰۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور پیش کیا ہے اس کو عمل میں لانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔